इन्वेस्टर वहाँ मौजूद होते हैं, बड़े बड़े टेक्निकल लोग होते हैं, फिर बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, तो फिर वो उनको हायर भी कर सकती हैं। तो बहुत यानी आपस में टेक्निकल लोगों का, टेक लोगों का आपस में एक समिट, कन्वेंशन, आपस में जुड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत ज़रिया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है एक्सप्लोरिंग बेंगलुरु टेक समिट 2023। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Welcome to Bengaluru, world's fourth largest tech capital, and today we are standing in Bengaluru Tech Summit, which is Asia's largest technology summit. In India, the country of innovations, Bengaluru has been the capital of technology and its rise from past few decades. And today over here, we see a lot of upcoming startups, MSMEs and other companies from all around the world showcasing their talent, showcasing their innovations and showcasing the upcoming future. This summit brings up the policies, the different laws and all other ideas that will propel Bengaluru in future to remain and grow as the tech capital of this country and make a strong statement throughout the world that why it has been growing so strong and how much potential it holds. Let's find out how Bengaluru is hosting this tech summit and what do we see over here that is so interesting. But what exactly is the Bengaluru Tech Summit? It's basically an annual gathering that brings together the brightest minds in technology, innovation and business. The Bengaluru Tech Summit features inspiring keynote speakers who share their insights, experiences and visions for the future of technology. Attendees have an opportunity to connect with industry leaders, entrepreneurs and researchers, gaining valuable insights into latest trends and innovations. Over here, one can engage in thought-provoking discussions during panel sessions where experts delve into critical topics shaping the future of technology, and the attendees have an option to ask questions to the panelists. Explore the cutting-edge technologies and innovations on display at the Summit exhibition, featuring groundbreaking solutions from startups to well-established industry players. On the day one of the summit, the main highlight for everybody was the one-to-one replica of Chandrayaan lander and rover. The Chandrayaan 2 mission that took off this year was obviously seen by all of us Indians, but this model over here is a one-to-one scale, which means that this is the actual size of the lander that's right now on the moon and also the actual size of the rover. Extremely interesting to see and also something that makes you really happy when it comes to our achievements. The Bengaluru Tech Summit provides a unique platform for networking, fostering collaboration and partnerships that drive technological advancements. Bengaluru has been hosting the Tech Summit for over 25 years, and this is the 26th edition of this, with the theme Breaking Boundaries that encapsulates the spirit of innovation, disruption and exploration. BTS 2023 will serve as a global meeting ground uniting large tech companies, dynamic startups, visionary investors and cutting-edge research labs from over 30 nations, and provide limitless opportunities and provide a ground for limitless innovation and boundless opportunities. 600 plus exhibitors, 2000 plus startups and 20,000 plus business attendees, and every big name that you could hear from private as well as public side, and hear from the leading names in tech. This is the Bengaluru Tech Summit 2023. जी जनाब, इस सबमिट से अंदाज़ा हो रहा है कि कितना रुझान है, कितना इंटरेस्ट है इंडिया में, इंडियंस को टेक में, और इन फ्यूचर सारे स्टार्टअप, सारी नए बिज़नेस या सारी यंग जनरेशन जो है वो टेक की तरफ, एंटरप्रेन्योर की तरफ जा रही है। और सारा मतलब है कि इतना बड़ा ये सबमिट है कि एशिया का सबसे बड़ा सबमिट, टेक सबमिट। और बेंगलुरु वैसे ही दुनिया को पता है कि आने वाले वक्त में सिलिकॉन वैली है, समझो इंडिया का सिलिकॉन वैली ही कहा जाए तो कम ना है। और बेंगलुरु की बात ही और है।
दुनिया में सबसे ज़्यादा, एशिया में सबसे ज़्यादा, इंडिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाला सिटी, सबसे ज़्यादा। और मैंने ये भी सुना है, क्या ये सच है या झूठ है या गलत है या सही है, महंगा सिटी भी हो गया ये। यहाँ पे रिहाइश इतनी आसान नहीं है, रिहाइश इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ पे जगहों की वैल्यू, फ्लैट्स की वैल्यू, जहाँ पर कमर्शियल एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फूड्स वगैरह भी, चेन जो है रेस्टोरेंट्स भी हैं, वहाँ के रेंट भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो एक तरह से थोड़ा सा जब टेक्नोलॉजी के हवाले से यहाँ पे बिज़नेस बढ़ रहा है, तो फिर यहाँ पे ज़मीन की वैल्यू भी, जहाँ पे देखें ज़मीन की वैल्यू या ज़मीन की जगह की ज़रूरत ज़्यादा होती है जहाँ पर लोगों को, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये एक कुदरती हो जाता है, नेचुरल हो जाता है कि यार ज़रूरत है। तो कहते हैं ना कि एक लॉ है नीड और ज़रूरत वाला, क्या है पता नहीं, कि उसमें होता है ना कि जब ज़रूरत है तो वैल्यू बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है। बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी, बहुत बड़ा था। हज़ारों लोग आए हुए थे, हज़ारों लोगों ने अपने, कई नए लोग हैं, कई नई जनरेशन है, उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें बनाई होंगी। कराची में हुआ था एक्सपो सेंटर में, उसमें मतलब है कि यही था कि लोगों ने अपने स्टॉल लिए हुए थे। उस स्टॉल में अपनी जो चीज़ है, अपनी प्रोडक्ट की जो है वो नुमाइश करवाते हैं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। जो कोई सर्विस है, किसी ने कोई एप्लीकेशन बनाई है, किसी कोई इस तरह की सर्विस दे रहा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वो अपनी थीम, अपना आइडिया, अपनी चीज़, फिर लोग, इन्वेस्टर वहाँ मौजूद होते हैं, बड़े बड़े टेक्निकल लोग होते हैं, फिर बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, तो फिर वो उनको हायर भी कर सकती हैं। तो बहुत, यानी आपस में टेक्निकल लोगों का, टेक लोगों का आपस में एक सबमिट, कन्वेंशन, आपस में जुड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत ज़रिया है। इस तरह से ग्रोथ होती है। इस तरह से एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर भी है जिसे लोग नहीं जानते, अगर वो यहाँ अपना 5,000 10,000 का स्टॉल ले लेता है किसी तरीके से, या नहीं भी लेता, पब्लिक को तो इजाज़त होती है आने की, शायद कोई फ़ीस होती है या नहीं भी होती, बाज़ दफ़ा पब्लिक फ्री भी होती है, बाज़ दफ़ा पब्लिक का चार्जेस होते हैं, टिकट होता है। तो अब यहाँ पे क्या था, ये इसमें तो नहीं था डिटेल में। तो अब क्या है कि एक आम शख्स भी अपनी चीज़ को बड़े बड़े लोगों तक पहुँचा सकता है, इन्वेस्टर्स तक पहुँचा सकता है। इससे ग्रोथ होती है, ये होने चाहिए। प्रगति मैदान जो है वो भी इसी काम के लिए बना है दिल्ली में, जहाँ पर, ये तो चलो एक टेक्निकल था, जहाँ पर फिज़िकल चीज़ें जो हैं, जैसे कपड़े के हवाले से वहाँ पे एक सबमिट होने वाला था, या एक नुमाइश होने वाली थी, एग्ज़िबिशन। अब वो हुई है नहीं हुई है पता नहीं। तो टेक्सटाइल के हवाले से जितने भी दुनिया के लोग होंगे वहाँ के अपने मटेरियल, अपनी चीज़ें, अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ के एक दूसरे से शेयर करेंगे, फिर वहाँ बायर भी होंगे, इन्वेस्टर भी होंगे। तो इस तरह से प्रगति मैदान बना है। इस तरीके से बेंगलुरु में ये चीज़ हुई है। तो इससे मुल्क में विकास होता है, इससे आपका छोटा छोटा जो एंटरप्रेन्योर है वो भी निकल के बाहर आता है। तो बहुत ही खूबसूरत चीज़, बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में जो चंद्रयान 3 का रियल मॉडल, रियल साइज़, रियल रोवर जो है उसका रियल साइज़, मतलब मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ मैं आपको बता नहीं सकता, कि काश उस वक्त सामने खड़े होकर बंदा देख सके कि अच्छा यार ये साइज़ था चंद्रयान का, ये साइज़ है। इस तरह सेम टू सेम वो जिस तरीके से उसमें येलो कलर की जो वो एक कवरिंग की हुई है, फिर वो सोलर प्लेटें लगी हुई, मतलब सेम कह रहे हैं कि सेम मॉडल है, ये सेम साइज़ का मॉडल है। क्योंकि जाहिर सी बात है जिन्होंने बनाया तो सारी डिटेल चंद्रयान 3 की पड़ी हुई है इंटरनेट पे, तो उसको बाकायदा लेके, उसको बाकायदा देख के कि उसके पहिए, जो उसका जो पहिए जो नहीं, उसकी जो बेस है, उसकी जो हाइट है, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। काम नहीं करता होगा, मशीनरी नहीं होगी उसके अंदर, लेकिन बाहर से जो इक्विपमेंट दिख रहे हैं, जो चीज़ दिख रही है, सेम वही चंद्रयान 3 है। कमाल, मतलब किसका दिल नहीं करेगा जाके देखे, यकीन करें बस। वो सबसे ज़्यादा जो है ना, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आकर्षण का मरकज़ जो है, सबसे ज़्यादा पब्लिक, सबसे ज़्यादा सेल्फियाँ उसी की खिंची होंगी चंद्रयान 3 की। सब लोग वहाँ गए जाके सेल्फियाँ बनाई होंगी, बना भी रहे थे। तो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव हुआ होगा। जो लोग वहाँ पे फिज़िकली मौजूद थे, बहुत अच्छा लगा होगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।